ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਕਿ ਇਟ ਮੇਕਸ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਥੀਟਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜੇ? ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡਾਈਪੋਲ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਟਡ ਐਂਗਲ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਥੀਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡੀ ਥੀਟਾ ਤੇ ਡੀ ਥੀਟਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਡੀ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਟਾਓ ਆਏਗਾ। ਟਾਓ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ? ਡੀ ਥੀਟਾ। ਤੇ ਟਾਓ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੀ ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਡੀ ਥੀਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਇੰਨੇ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ
थीटा इज इक्वल टू थीटा तक। पहला थीटा 0 सी इस तरीके नाल कोई एंगल थीटा बनाउणा वा आपां ते कितना वर्क करना पिया डबल जू डिफरेंशियल वर्क डी डबल जू इधर की आएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। हुण इत्थे आपां लिमिट्स पावांगे शुरू कित्थों होना वा जदों थीटा 0 वा कित्थों तक जाना किसी एंगल थीटा तक। जदों असीं किसी एंगल थीटा की गल कर ली ना तो बाद में असीं थीटा की कोई वैल्यू भी भर लांगे 90 भर लांगे 180 भर लांगे वो सारिਆਂ वास्ते की आ एग्जिस्ट करेगा। तो हुण देखो डाइपोल मूवमेंट के इलैक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्सटेंट आ ये मैं बाहर कढ़ लैना। इंटीग्रेशन किहदी होनी आ इंटीग्रेशन होनी आ साइन थीटा की तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन होंदी है माइनस कॉस थीटा। जेकर मैं इनू सैपरेटली सॉल्व कर ला इन्नी चीज़ को इधर इधर देखो थले 0 उपर थीटा एंगल साइन थीटा डी थीटा तो की बनेगा माइनस कॉस थीटा तो लिमिट की आ साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा इधर 0 उपर थीटा। लिमिट्स नूं किद्दां पुट अप करदे आपां आ वाला माइनस बाहर कढ़ लैंदे आ पहला अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस फिर लोअर लिमिट कॉस 0। हुण इनू सॉल्व किया साडे कोलों की आया कॉस 0 की हुंदा वा -1 हुंदा वा ते अगे कॉस थीटा ते बाहर की आ माइनस वा ते आ वाला माइनस अंदर जाएगा तो यह की बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपां इत्थे की करते हैं डायरैक्ट रिजल्ट यूज करते हैं पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये किया दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द इलैक्ट्रिक डाइपोल अप टू एंगल थीटा। थीटा एंगल तक रोटेट करने वास्ते सानू इन्ना वर्क करना पिया। ते हुण असीं की करते हैं इहदे वख-वख केस देखते हैं कि कितना एंगल घुमाण ते इनू किन्ने वर्क की जरूरत आ। ते जेकर असीं कहीए कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 साडे कोलों ए वाली इक्वेशन आई असीं इत्थे उपर लिख लैंदे आ डबल यू इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 कॉस 0 की हुंदा है 1 हुंदा है तो जेकर 1 भर दांगे 1 माइनस 1 0 डबल यू इज इक्वल टू 0। इहदा मतलब जदों एंगल थीटा 0 हुंदा वा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया उत्थे वर्क की कोई जरूरत नहीं है उत्थे की आ इन्हें अपने आप ही अलाइन हो जाना। तो जेकर असीं कहीए कि वर्क थीटा कितना सैकेंड केस करते हैं पहला केस थीटा 0 दूजा केस करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर डायग्राम भी बना लेंगे हैं फील्ड दी पॉजिटिव इधर नैगेटिव थीटा 0 मतलब ए वाली पोजीशन माइनस प्लस इधर। हुण इत्थे वर्क कितना वा 0 फोर्स भी कितनी सी असीं देखिया सी कि इत्थे टॉर्क 0 लगती आ तो जदों ये 90 डिग्री ते आएगा ए वाले एंगल ते आएगा माइनस प्लस। हुण कितना वर्क करना पएगा मतलब जेकर ये इस तरीके नाल अलाइन आ तो तुसीं इहनूं इत्थे लैके आउणा वा तो इहनूं कितना वर्क करना पएगा। जां मैं इदां भी कह सकदा कि ये इत्थे आ इहने खुद इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस दे करके आउणा वा इत्थे अलाइन होना स्टेबल इक्विलिब्रियम च फिर इहनूं कितना वर्क करना पएगा। ये दोनों वर्क इक्को ही आ चाहे असीं इदां कहीए कि इनू स्टेबल इक्विलिब्रियम तो एंगल 90 बनाना उत्थे की आ असीं करवाउणा वा जां असीं कहीए कि ये इस पोजीशन ते 90 ते इन्हें खुद आउणा वा कितना वर्क करना पैना वो दोनों वर्क बराबर ही आ। एंगल 90 कवर करना तो देखिए कितना वर्क करना पएगा इनू कॉस 90 की हुंदा वा 0 हुंदा वा 0 हो गया तो की रह गया वर्क सिर्फ पी ते ई रह गया मतलब इत्थे तक पहुँचण वास्ते वर्क कितना वा पी ते ई। हुण तीसरा केस करते हैं तीसरे केस दे विच एंगल मान लो 180 डिग्री आ 180 डिग्री मान लो इत्थों इन्हें फिर इधर नूं आउणा वा 180 डिग्री एंगल बनाउणा वा ते 180 डिग्री ते की हुंदा वा सानू पता कॉस 180 की हुंदा वा -1 हुंदा वा जदों इत्थे -1 लगेगा माइनस माइनस प्लस हो जाणगे ते 2 हो जाएगा तो वर्क कितना होएगा 2PE। हुण देखो जदों इत्थे सी स्टेबल सी वर्क 0 90 डिग्री ते लै गए PE वर्क किया अगले 90 दे फिर PE वर्क किया तो टोटल कितना हो गया 2PE वर्क हो गया। इस तरीके नाल असीं इहदा वख-वख ओरीएंटेशन ते वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं
क्योंकि कल नूं असीं इहनूं इदां सोचना वा कि ये एंगल थीटा दे उपर पिया वा ते इहनूं अपनी स्टेबल कॉन्फिगरेशन लैण वास्ते कितना वर्क करना पैना, जां खुद करना पैना जां करवाउणा पैना। ये साडियां वर्क दियां इक्वेशनस आ। पर इत्थे एक गल दा खास ख्याल रखिया जावे, जिहड़ा ये वर्क आ ये दी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी नहीं आ। जिवें आपां कहंदे सी कि एक चार्ज वा क्यू ते ए उहदा कोई फील्ड वा, असीं कह इहदा कोई फील्ड आ, ते जदों असीं बाहरों किसी चार्ज नूं इहदे अंदर लिआउने आ ते वर्क कराउने आ, जिहड़ा वर्क असीं बाहरों अंदर लिआउण लई कीता होया वा ना, वो वर्क की आ, वो वर्क इहदी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी बन जांदा वा। पर इत्थे की आ, इत्थे कीता होया वर्क पोटैंशियल एनर्जी नहीं बनना। वो क्यों नहीं बनना, वो असीं हुण देखदे आ कि जिन्ना वर्क असीं करवाउने आ वो इहदी पोटैंशियल एनर्जी दे रूप विच किवें स्टोर नहीं आ। कि पोटैंशियल एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रिक डाईपोल इन इलैक्ट्रिक फील्ड, के मतलब जदों ये डाईपोल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच पिया हुंदा वा उस समय इहदी कितनी पोटैंशियल एनर्जी हुंदी आ। जिवें असीं पहलां कहा, असीं कहा कि एक डाईपोल नूं असीं मान लो थीटा डिग्री ते रोटेट करदे आ ते सानूं कुछ वर्क करना पैंदा वा, ते की वो वर्क जिहड़ा वा वो पोटैंशियल एनर्जी दे रूप विच स्टोर हो जांदा है। असीं उत्थे कहा सी नहीं, ये सानूं चैक करना पएगा कि ये वर्क पोटैंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर क्यों नहीं हुंदा। हुण देखो मैं एक सिंपल जी एग्जांपल लेना, मान लो कि इत्थे एक डाईपोल पिया होया वा, ए वाला आपां कहंदे आ स्टेबल पोजीशन दे विच पिया होया वा, स्टेबल इक्विलिब्रीयम च पिया होया वा। ते जेकर मैं इनू ये पूछां कि स्टेबल इक्विलिब्रीयम दे विच तेरी एनर्जी कितनी आ, जे ते कवे कि मेरी एनर्जी हैगी आ 0, पोटैंशियल एनर्जी जिन्हों असी यू ना लिखांगे, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी बोलांगे U0, फिर तो मैं ये गल कहांगा कि जेकर 90 डिग्री ते मैनू वर्क करना पैंदा वा, मान लो कोई P ते E, ते हुण PE वाला वर्क जिहड़ा वा वो तेरी की बन जाना वा, पोटैंशियल एनर्जी बन जाना, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी बन जाना। पर जेकर ये डाईपोल आखे कि मेरे को 10 एनर्जी पहला ही हैगी आ जदों मैं इक्विलिब्रीयम ते पिया होया वां, ते फिर इत्थे टोटल एनर्जी कितनी बन जानी आ, PE + 10, मतलब साडे वाला वर्क जिहड़ा वा वो टोटल एनर्जी नहीं बनना, इहदी वो की आ, वो ऐड होना वा। हुण देखो तीसरी गल, जेकर मैं कहां कि इहदे कोलों इत्थे एनर्जी हैगी आ -10 ते बाद विच मैं वर्क किया ते PE, ते मान लो मेरे वर्क की वैल्यू हैगी आ 50, ते मैं इत्थे पूछां कि हुण तेरी पोटैंशियल एनर्जी कितनी आ, हुण ये की आखेगा 40। सो मेरे कहने का मतलब आ सानू सब तो पहला ये जानना पएगा कि जदों इस डाईपोल नूं फील्ड दे अंदर रखिया वा उस समय इहदी कितनी एनर्जी आ, कि इहदे कोलों कोई प्लस दे विच एनर्जी आ जां कोई इहदे कोलों माइनस दे विच एनर्जी आ। जेकर सानू इहदी इनिशियल स्टेज वाली स्टेबल इक्विलिब्रीयम वाली एनर्जी पता लग जाए तो असी जिन्ना वर्क कराउणा वा वो की होना, वो तो ऐड हो जाना, तो इहदी टोटल इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी का सानू पता लग जाना वा। हुण देखो फील्ड दे विच की हो रहा वा, फील्ड लगा होया वा इधर नूं, आपां सिंपल लाइनां तो देखते हैं, तो आपां इस साइड तो इस डाईपोल नूं लैके आ रहे हैं, आ डाईपोल आ नैगेटिव चार्ज, ए डाईपोल दा पॉजिटिव चार्ज, आपां इधर नूं लैके आ रहे हैं, तो मान लो इस पोजीशन ते लैके आउणा ए वाली पोजीशन दे उपर। हुण असी एक्सटर्नल फोर्स किधर नूं ला रहे हैं, इधर नूं ला रहे हैं एक्सटर्नल, मैं इस डाईपोल नूं लैके अगे जा रहा हाँ, तो जदों ये डाईपोल इस फील्ड दे अंदर आ जाएगा, अंदर आउण ते की होएगा, सानू पता वा कि ये वाला आपां एक डायग्राम होर बना लैंदे आ कि ए वाली पोजीशन ते आ गया, ए वाला नैगेटिव ए पॉजिटिव। जदों ये ए वाली पोजीशन ते ये नैगेटिव चार्ज आ जाएगा तो सानू पता कि इनू अगों की आ अट्रैक्शन मिलनी आ पॉजिटिव प्लेट दी, अहीं फोर्स किधर नूं लाउणी आ। पहलां ते असीं अपना हिसाब किताब वेखीए कि असीं फोर्स किधर नूं लाउणी आ। देखो ए वाला पॉजिटिव चार्ज, इनू सामने वाले पासों की मिलनी आ, रिपल्शन मिलनी आ। पॉजिटिव जेकर इस फील्ड की गल करिए
इधर पॉजिटिव चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनां बना रहा वा तो इस पॉजिटिव चार्ज ने बाहरी फील्ड दे विच एंटर होना वा, इनू रिपल्शन मिलनी आ। जदों इनू रिपल्शन मिलेगी तो साडी फोर्स की आ, साडी एक्सटर्नल फोर्स अगे नू आ, असी अगे नू लावांगे। तो जे इहदे बारे सोचीए, इनू सानू रोक के रखना पैना, सानू की आ पिछे नू फोर्स लाउणी पैनी आ। मेरे कहण दा मतलब आ, असी इदां डिस्कस करांगे कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज आ ना, उहनू असी धक्के ना फील्ड दे विच घल्लणा वा ते वो जा भी उधर नू रहा ते असी फोर्स भी उधर नू ला रहे हैं, तो वो वर्क की आ पॉजिटिव आ। ते नैगेटिव चार्ज का की आ, नैगेटिव चार्ज जा अगे नू रहा वा पॉजिटिव प्लेट दे वल, ते असी फोर्स किधर नू ला रहे हैं, पिछे नू, मतलब उन्होंने रोक के रख रहे हैं कि भज ना जाए, वो एक्सीलरेट ना हो जाए। ये एग्जाम्पल इदां दी आ, मान लो मैं हत्थ दे उपर चौक रखा होया वा ते ये चौक नू मैं की करदा वां, हौली हौली नीचे लैके जा रहा वां। जो मैं हौली हौली नीचे लैके जा रहा वां तो मेरा हत्थ किधर नू फोर्स ला रहा वा, उपर नू फोर्स ला रहा वा, मेरा हत्थ इनू रोक के रख रहा वा, पर फिर भी मैं इहदा मोशन किधर नू करा रहा वां, इहदा मोशन नीचे नू करा रहा वां। उही गल इत्थे आ कि नैगेटिव चार्ज ने भज के इहदे वल जाना, सानू इनू खिच के रखना पैना। असी इनू की कहांगे, साडी फोर्स पिछे नू जा अगे नू रहा वा, नैगेटिव वर्क। तो यदि गल करिए पॉजिटिव दी, पॉजिटिव के उपर फोर्स असी लगा रहे हैं, ये मूव भी इधर नू कर रहा, मूव भी अगे नू करना वा, तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर नू लग रही आ। तो ये पॉजिटिव वर्क आ, ये नैगेटिव वर्क आ, तो दोवां दा वर्क असी देखना वा। हुण मान लो जदों असी इस इलैक्ट्रिक डाईपोल नू बाहरों चुक के फील्ड के अंदर एंटर कराया, ए वाली जगह के उपर आया, किहड़ा सिरा नैगेटिव वाला, इनू कह देंगे ए वाली पोजीशन। ए वाली पोजीशन ते असी इस चार्ज का वर्क कैलकुलेट किया, असी क्या वो वर्क की आ नैगेटिव आ। बाद विच ए वाला सिरा इत्थे आया, तो जदों ए वाला पॉजिटिव टर्मिनल इत्थे आया, उस समय की स्थिति सी, पॉजिटिव इत्थे आ गया तो नैगेटिव कित्थे चला गया, अगे चला गया, क्योंकि उन्हें अगे मूव कर जाना। हुण ए वाली पोजीशन ते पॉजिटिव चार्ज आया, कितना वर्क करना पिया, पॉजिटिव, जिन्ना भी वर्क करना आया, जिथों मर्जी आए हुण, भावें इनफिनिटी तो आए आ, भावें बिल्कुल इलैक्ट्रिक फील्ड के जस्ट 1 मीटर 2 मीटर बाहरों ही आए आ। हुण नैगेटिव चार्ज ने ए वाली पोजीशन ते पहुंचण लई जिन्ना वर्क करना वा, उन्होंने असीं नैगेटिव लैना वा, ते उसी जगह ते बाद विच पॉजिटिव चार्ज ने होना वा, वो वर्क की आ पॉजिटिव आ। हुण आपां इदां कहना वा कि ए पोजीशन ते पहुंचण लई नैगेटिव चार्ज नूं कितना काम करना पिया, -W, ते पॉजिटिव चार्ज नूं कितना करना पिया, +W, ते टोटल वर्क कितना हो गया, 0। ए वाली पोजीशन ते पहुंचण लई टोटल वर्क डाईपोल का की आ, 0 आ। पर एक गल इत्थे ये हुई कि जदों ए वाली पोजीशन ते पॉजिटिव चार्ज पहुंचिया ना, उदों ये नैगेटिव चार्ज अगे मूव कर गया, उन्हें एक्सट्रा वर्क किया, क्योंकि ये अजे ए वाली पोजीशन ते पहुंचिया ही आ, ये अगे मूव कर गया। हुण जिहड़ा ए डिस्टेंस कितनी आ, 2L आ, मतलब 2L डिस्टेंस जिहड़ी आ वो नैगेटिव चार्ज ने ज़्यादा वर्क करता वा, किहदे मुकाबले, पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले। तो ये जिहड़ा 2L डिस्टेंस वाला वर्क आ, ये सानू कैलकुलेट करना पैना कितना वा, तो असीं कैलकुलेट करते हैं कि वर्क कितना होएगा। इनू प्रॉपर लिख लेना कि इस तरीके नाल एट पॉइंट ए वर्क डन बाय नैगेटिव चार्ज, जिन्ना भी लिखोगे -W आएगा, उस जगह ते जो पॉजिटिव चार्ज आया वो +W आ, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 0 होएगा। क्यों होएगा टोटल वर्क 0, क्यों, देखो आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर ही लेते हैं। नैगेटिव चार्ज ते फोर्स ऑन नैगेटिव चार्ज, नैगेटिव चार्ज ते फोर्स किद्दां ला रहे हैं, पिछे नूं ला रहे हैं, सो दैट कि वो अगे नूं ना जाए, मतलब मूव नूं असीं अगे नूं करवाउणा वा, फोर्स असीं उहनूं पिछे नूं खिच के रखनी आ कि अगे ना मूव करे।
कितनी फोर्स आ माइनस एफ माइनस क्यू ई। फोर्स की डेफिनेशन एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इस स्थिति दे प्लस क्यू ई। तो वर्क की हुंदा तुसीं समझ गए होवोगे, वर्क डन ऑन लिख दो या बाय लिख दो, ऑन नेगेटिव चार्ज वर्क की आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ कितना आया माइनस क्यू ई, डिस्टेंस मान लो ए इनफिनिटी तो कवर करके आया, मैं इनफिनिटी लिख देना इत्थे, उस तरीके नाल प्लस क्यू ई इनफिनिटी। हुण ये दोनों की आ कट्टे जाने आ, कट्टे गए तो वर्क की हो जाना जीरो। ए वाली पोजीशन ते पहुंचण लई कोई वर्क नहीं करना पिया, पर इस नैगेटिव चार्ज ने एक्स्ट्रा वर्क कर लिया जदों तक ए पॉजिटिव चार्ज, जदों तक पॉजिटिव चार्ज ए वाली जगह ते पहुंचा। हुण ये जिहड़ा एक्स्ट्रा वर्क आ ना ये सिस्टम दे विच रह गया, क्योंकि इन्हें पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा मगर आ गया सी उन्हें हुण इस पोजीशन ते नहीं आउणा, ये इत्थे ही रहना वा। ते ये जिहड़ा एक्स्ट्रा वर्क आ इनू कैलकुलेट करना पएगा कि ये एक्स्ट्रा वर्क कितना वा। असीं देखते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क डन बाय नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय नेगेटिव चार्ज, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितनी लग रही आ माइनस क्यू ई, डिस्टेंस कितनी कवर की इन्हें 2L, ते सानू पता Q2 ते L की हुंदा वा डाइपोल मूवमेंट हुंदी आ, ते वर्क की आया माइनस PE। ये वर्क की आ इन्हें बन जाना इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। हुण देखो जदों ये स्टेबल इक्विलिब्रीयम चा ते असी देखा कि इनू बाहरों चुक के रखिया वा, ते बाहरों चुक के रखण वास्ते सानू कितना वर्क करना पिया माइनस PE वर्क करना पिया। ते असी इनू इत्थे 90 डिग्री रोटेट किया, ते जदों 90 डिग्री रोटेट किया ते सानू कितना वर्क करना पिया PE, ते टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यदि जीरो। इत्थे इहदे कोलों कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ PE, क्योंकि सानू इन्ना वर्क करना पिया, ए दी पोटेंशियल एनर्जी बन जानी। ते असी 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट किया ते कितना वर्क किया PE वर्क किया, ते माइनस PE पहला सी तुसी प्लस PE विच ऐड करता ते वर्क एनर्जी जीरो। मेरे कहने का मतलब आ कि जदों ये स्टेबल इक्विलिब्रीयम च सी इहदी एनर्जी नैगेटिव सी, ते तुसी 90 डिग्री ते लियाउण वास्ते इहदे विच उन्नी ही पॉजिटिव एनर्जी जोड़ती प्लस PE, उन्ना ही वर्क किया ना, तो ये वर्क ने पोटेंशियल एनर्जी बन जाना। हुण इत्थे जाके जेकर असीं पोटेंशियल एनर्जी चैक करांगे कितनी होगी जीरो होएगी, क्योंकि माइनस PE पहला ही सी प्लस PE दा वर्क होया वा, टोटल एनर्जी जीरो होगी। सो ये गल बहुत ध्यान नाल चेता रखनी है तुसीं कि डाइपोल दी किहड़ी गल पुछी गई है, डाइपोल दे उपर किहड़ी जगह ते कितनी फोर्स लगदी आ, कितना वर्क करना पैंदा वा, ते तीसरी गल एनर्जी दी। ये वक्रियां वक्रियां चीज़ां वा। असीं वर्क देखिया कि वर्क 90 डिग्री ते PE होया वा, पर इस जगह ते एनर्जी कितनी आ जीरो हो जाती आ। 180 डिग्री घुमाउणा होवे ते कितना वर्क करना पैंदा वा 2PE। तो जे असीं इत्थे एनर्जी चैक करिए 180 डिग्री ते कि 180 डिग्री डाइपोल घुम गया वा, उहदे कोलों कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ, ते कितनी होएगी कल्ली PE होएगी। क्यों? क्योंकि माइनस PE इत्थे सी, प्लस PE दा वर्क किया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, 2PE होर वर्क किया वो एनर्जी रह गई इहदे कोलों। सो इस तरीके नाल ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां वा ये तुसीं ध्यान नाल देख लेना कि किहड़े एंगल ते कितनी टॉर्क वा, कितना वर्क वा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ। असीं इसे करके जदों वर्क की गल की सी कि ये बॉडी ते इन्ना वर्क किया वा ते उस वर्क नूं पोटेंशियल एनर्जी नहीं सी किया। क्यों नहीं सी किया? क्योंकि उदों इहदी एनर्जी जीरो नहीं सी जदों स्टेबल इक्विलिब्रीयम सी, इहदे कोलों नैगेटिव एनर्जी आ, ते वो नैगेटिव की जिहड़ी देनदारी आ ना, जिहड़ी मतलब साडे ते करजा वा, नैगेटिव का मतलब आ करजा वा, पहलां वो करजा लावांगे तो फिर ही असीं दसांगे ना कि साडे कोलों हुण कितनी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ। सो ये साडा आर्टिकल आ इलैक्ट्रिक डाइपोल दा।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।